Good morning. This is Project Shine, and we have developed it for a maritime petrol radar. And the complete project is an indigenous project of India. And these Dornier has been produced by HAL Kanpur, which is the manufacturer of these Dornier. We as DRDO have a flying test bed, which is owned by DRDO. And in this flying test bed, we call it as a FTB, flying test bed. We have 4 payloads which are integrated into that. The primary sensor is the radar, which is called as a Kshitij radar, which is indigenously developed with partners of Indian industries, and it is a complete Indian-based industries. Apart from that, we have another 3 payloads. One is a EOIR. EOIR is the opticals and camera, which has been developed by IRDE. Then we have a ESM system, which has been developed by DLRL, and the SDR, which is developed by DEEM. So all the DRDO establishments, 4 DRDO establishments are put, and we have got this product done in a record time of 18 months. And we have tested it. Now we have a live demo which is going on in the runway, along with the data pattern, and the total technology is by LRDE. Okay, the production partner is data pattern. Good morning. I am from DRDO. So this is basically Rudram 2 missile. This is air to surface missile launched from the multiple platforms. It's another air-launched weapon. It has got many capabilities, like it has got multi-role capability. Also, it has got multi-platform capability. So, it's Rudram 2 is basically a standoff weapon which can neutralize the targets for the range of about 300 kilometers. As I was telling, multi-role capability includes it can act as a anti-radiation missile and also ground attack missile. In anti-radiation missile, the weapon will be using the Sakers, RF and RF Saker, whereas in ground attack role, it will be using the IR Saker. As a multi-platform capability, this weapon can be launched from Su-30 MiG-29K and also TED-BF Tejas. It has got a single solid state propulsion which produces required thrust to meet the weapon fall into the target. Also, it has got INS, RF Seeker and IR Seeker guidance system to guide the weapon and neutralize and fall onto the target. Yes, it has got a warhead capacity of about 200 kgs. It uses 2 types of warheads, that is PF and PCB, where when we are targeting towards radar installations, PF warhead will be used. When we are aiming onto the ground targets, PCB warhead will be used. Yes, it has got a lot of potential. Right now, Rudram 2 being test fired and being developed for Indian Air Force, and it also being used for the Navy version. So there's a lot of potential for this product. It's indigenously developed by DRDO. गुड आफ्टरनून। मैं ज़ेन टेक्नोलॉजी से इमरान बात कर रहा हूँ। यहाँ ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ ने एक काफ़ी हाई लेवल का नेक्स्ट लेवल का एंटीडोट सिस्टम डिस्प्ले किया है, जिसमें उन्होंने हार्ड किल का ऑप्शन रखा है। अभी तक ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ ने सॉफ्ट किल के काफ़ी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो हार्ड किल का ऑप्शन आता है वो ये है कि हम पहले तो जैमर को रेडार और वहाँ पे रेडार है जो रोटेट होगा एंड वो टारगेट को डिटेक्ट करेगा। देन आरएफ डिटेक्टर्स है जो आरएफ बेस्ड रेडार टारगेट्स को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हमको जैमर जो होगा वो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी वो जैम करेगा, सॉफ्ट किल ड्रोन्स को जैम करेगा। और उसको जैम करने के बाद हमारे पास जो नीचे जो लगे हुए ये पूरे हार्ड किल ऑप्शन है। पहले तो ये कामाकाजी ड्रोन्स है जो ऑटोमेटिकली ऑन हो गए और अपने आप उड़ के जाके जो ड्रोन टारगेट्स आ रहा है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर कुछ ड्रोन्स होते हैं जो उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं होते तो हमारे पास
रॉकेट लॉन्चर है, जो मिसाइल लॉन्चर हम बताते हैं। मिसाइल लॉन्चर जो होता है कि वो अपने आप टर्न करेगा, एक एक मिसाइल को उसे लॉन्च करेगा और वो जाके हिट करेगा। कुछ ड्रोन्स होते हैं जो बिल्कुल करीब आ गए, छोटे से ड्रोन्स है जिसको रॉकेट और ये मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकेगा, उसको ये ड्रोन उसको ये जो गन है ये गन करेगा। ये 4 बैरल गन है जो रोटेट होगा और ये एक सर्कुलर वे में इसको करेगा ताकि एक मिस हो गया बुलेट तो दूसरा भी जैम करेगा। यहाँ पे आपने एक सैम्पल सा वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो है ये बता रहे हैं कि जैसा अटैक होगा ड्रोन्स का, मल्टीपल ड्रोन्स का, इसको हम कैसे रोका जाए। देखिए ये एक एयरपोर्ट या एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ से आप देख रहे हो कि काफ़ी ड्रोन्स आ रहे हैं जिसको हम अटैक करने के लिए हमने ये सिस्टम लगाया है। अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम आपको आराम से जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये आपको न्यूट्रलाइज करेगा, चेक करेगा कि काफ़ी ड्रोन्स हमने देखा है यहाँ पर हमने जामना एक्टिवेट किया है। जाम क्या किया गया, जो ड्रोन्स जो जामे के अंदर होते हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अभी जो बाकी के जो ड्रोन्स है जो जामर से जाम नहीं हो रहे उसको हम ये कामाकाजी ड्रोन्स जो है वो एक एक जाके हिट करेगा, जो हमने कॉन्सेप्ट रखा था। फिर नेक्स्ट आएगा मिसाइल लॉन्चिंग। मिसाइल लॉन्च हुआ है और ये जो भी ड्रोन्स को जो एक्टिवेट करेगा वो डीएक्टिवेट करके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट बचा है कामाकाजी और गन बेस, जो एक ड्रोन से एक बुलेट से तो नहीं होगा, ये काफ़ी बुलेट से हम डीएक्टिवेट करके उसको भेज दें। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है कि हम ये जो एरिया है इसको कैसा प्रोटेक्ट कर ले। तो एक लेवल नहीं मल्टीपल लेयर में ये डिफेंस होगा, तो इसको डिफेंस लेयर एंटी ड्रोन सिस्टम बताते हैं हम, और इसका नाम दिया गया है व्योम कवच, जो आपको दिख रहा है नाम वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हम पूरे स्काई को हम कवर कर लें, और इसका हमने मोटो दिया है शील्ड ऑफ द स्काई। पार्ट है मेक इन इंडिया पार्ट है, और ये जो गन है, ये जो बैरल है, इसका एक एक पार्ट हमने यहाँ बनाया है। हाँ, जो कैमरा इसमें लगता है, कैमरा का जो एक कंपनी है जिसके साथ हमने टाइप किया है AIT, वो कंपनी के साथ में हमारा वो कंपनी का ही सेटअप है पूरा। ये देखिए आप, एक्सेप्ट द कैमरा सेंसर, जो लेंस वो बनता है, जो प्रोग्रामिंग होता है, जो उसके पीछे बिहाइंड एल्गोरिथम है, ये पूरा इन हाउस बना हुआ है। Okay. तो ये पूरा जेन टेक्नोलॉजीज का काम है। ये पूरा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी हार्ड के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है, तो एक ऑपरेटर से काम पूरा हो जाएगा।